सेंटर में देखना सर, सामने इस इंडस्ट्री में झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं। सर सामने Thank you, ma'am. Ma'am, wait, just wait. थैंक यू सर, थैंक यू। उनको सबको सर वन सर सामने इधर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नंबर लेफ्ट में 3 नंबर आ रहा है। Ma'am, just wait. यहाँ पे आप स्टील में Ma'am, send. वेट वेट लेफ्ट यहाँ लेफ्ट पे मैम Yeah, one more, yeah. थैंक यू धन्यवाद। Sumitra at first got in touch with me and he said, which was great. I read the script and I fell in love with it because I thought the message was so subtle, you know. It's not in your face. And it's also about the changing dynamics of a couple who have been together for 27 years and yet how, you know, this phase in a woman's life can really take the relationship somewhere. So I thought it was very nicely put in the script, and I think I fell in love almost immediately when said yes, I do. When Mansi man came to me, it was like मुझे भी नहीं मालूम था honestly about menopause, and हम periods को लेके इतनी बात कर चुके हैं कि इस चीज़ को हम पीछे छोड़ दिया है। So main हमारा जो main topic हमारा था कि किस family class को हमें focus करना है। If you're going like middle class or lower middle class, तो common है वहाँ पे झगड़ा लड़ाई ये it's very common. Upper middle class में it's very rare. So first of all हमारा focus था कि this and the 3 important things which I think शायद हम लोग ने दिखाया है। तो जो जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं मालूम था पहले मैंने उसको रिसर्च किया। It took me like 50-60% मुझे हेल्प मानसी मैम से मिल गई थी क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइडेड था कौन सा। And but that's it. तो ज़्यादा कुछ नहीं। And 30 years old. Such a good way it has been, you know, अच्छी film, it's been very naturally, you can say. बहुत ही अच्छी फिल्म है। अभी what do you feel personally, you know, what हमारे यहाँ पर awareness नहीं है, उस पर आप क्या कहोगे, किस तरह का मैसेज? हाँ। Message मुझे कुछ देने की जरूरत ही नहीं है when two extremely young people like Mansi and Soumitra are taking up subjects like this. The future looks very bright, you know, and I'm very happy about the way that the story beautifully depicts the lack of conviction the one woman is facing through and the lack of sex education as well, as rightly said by director. You know, even he didn't know what is menopause. So I think it's high time. It should be taught. The sex education about the menopause also should be discussed on forefront. What do you want to say about it? To both. I totally agree with what you're saying. There are a lot of factors in our lives which we hide away from. And I believe, my way of thinking is that there are 2 aspects to it.
one is ignorance, and one is deliberate hiding. Menopause is a subject which is basically, I feel, because of ignorance. Periods, yeah, there was a long time when I was also growing up when periods used to not be discussed. Today the children are very open about it, which is a great thing. It's good. But उस ज़माने में चर्चा नहीं होती थी और मतलब मेरे साथ हुआ है, मैंने बच्चों से भी शेयर किया. I wasn't allowed by my larger family in Jaipur to go and buy sanitary napkins for my cousin. I was going to the market. She asked me to get. They said नहीं तुम नहीं ला सकते. तो वो एक ज़माना था. अभी एक अलग ज़माना है. We have contraception, we have sanitary napkins. But menopause, I think, is ignorance. Also, I feel that it is like he's very clearly said in the film, and like Pallavi also said, it's psychological. More than the physical body changing, your metabolism changing, your mind, your subconscious is also changing. So, like her character in the film, it's not done loudly. There are subtle things like the itching and this, that, and irritation. So I think this sort of a film is such a great gift because it will wake up people to the fact that यार ये हकीकत है, you know, भैया इसको छुपाओ मत यार, come to terms with it and deal with it and take care of the people who are there in your household यार, एक दूसरे की मदद करने के लिए तो हम पैदा हुए हैं. That's what I feel. Ma'am, what do you want to say about it? On a more positive note, I think we are doing much better today than we did yesterday. Up until a few years ago, all these were very taboo subjects. We didn't want to talk about them. Women didn't want to talk openly about their problems with their male colleagues. But things are changing now. But as far as menopause is concerned, I think it's got everything to do with your hormonal changes. And it really, you don't understand when it starts hitting you because it's not like overnight everything changes. It just, it seeps in very slowly. So it's even difficult for a woman to understand that she's going through menopause. So I think what we as a society need to do, and which has started around, I can see, is support groups which can educate women to understand these changes, the physiological and the psychological changes that they will, face, and how not to lose heart, how not to lose hope. This is not the end. In fact, I remember a long time ago, my mother, when she was around 50, 55, and she went through her menopause, and she thought that's the end of it, because as she was brought up back in those days, what was a woman's job? To reproduce, And she said, "Iske baad mujhe bachche nahi hone wale hain, and this is the end of my life." But it was only when she went through this whole process and when she emerged out of it, she realized, and she wrote an article, जिसको मराठी में उन्होंने स्वल्प विराम कहा था, which means a comma. And she said, ये बस एक comma था life में, मेरी life का full stop नहीं था. The sentence was still to be continued. And I think she put it very beautifully, and that is what every woman needs to understand, and every woman has to go through this, So I think a little support groups would help, but again, reiterating what I said earlier, positively, we are doing much better today than what we did yesterday. Thank you. Mansi, what are your plans for the film in terms of planning the festival? How do you plan to take it forward? First in festivals, then we have to release in OTT channels. I think you're looking at the plan. But Mansi, being a producer, of course, it's a very special story for you. How did you got associated with this? The first thing that came to your mind when you actually came to know about the movies? It just clicked, like I've seen, I think 1 or 2 women who have gone through that. Then I realized people don't know about it. Even I also don't know my mother when she has gone through the menopause and all, suddenly what happened. And then I've decided, yes. I think I have done 7 to 8 months research in. Mansi and Savitra, any plan this is such a awareness subject actually. So, government ke saath, you have things like, on a larger scale, we can try to promote the awareness. Yes. Especially like
in villages, the remote areas. Yeah, we are planning. We are into it. We'll see. Yeah, we have certain plannings like we are talking to Cities में भी लोगों को ज़्यादा नहीं पता है. वहाँ तो that's why my our main concern is for the upper middle class, where most of the ladies उनका इतना होता है कि उनकी उम्र के बारे में बोलो तो बड़ा कंसर्न हो जाती है किटी पार्टी टाइप्स. So it's that's why we have main concept was कि just जो फैमिली है जिनका ये फेस है it would be upper middle class, so that कि जो अपने मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है उनको ऐसा नहीं लगे कि सिर्फ हमारे साथ होगा, ये सबके साथ. So we are planning to take interviews, some bites, going in cities, small towns and all. In village, people don't know about the period proper. Okay, the menopause is a bigger thing for that. So menopause के लिए उधर बताने के लिए we have to like proper camping way, like in the आपको aware करना, आपको बताना कि menopause क्या है. शुरुआत ही नहीं पता होगा. शुरुआत ही नहीं पता होगी. ये तो है. Lots of women like they don't know about it कि भाई क्या हो रहा है ये. क्या आप दोनों से जानना चाहूँगा प्रोड्यूसर मानसी एंड सुमित्रा, कास्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. वो दो दिग्गज जो आपके बिल्कुल बराबर में बैठे हैं, उनसे तारुफ की जरूरत नहीं है. इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड यू वांट दिस पीपल टू पीपल ऑन बोर्ड. हाउ कास्टिंग हैपेंड? Casting For a Ritu Raj sir, झूठ बोल रहा है लड़का. Nishit was कास्टिंग there. डायरेक्टर से मैं आज मिला हूँ. No, for I'm telling you, for a Ritu Raj sir, Nishit Verma is there. He had suggested before that, and then he have only contacted to serve. Yeah, for Ritu sir. And Pallavi ma'am obviously हमारे माइंड में ही थी कि हमें पल्लवी मैम को लेकर करना है. So song. The last work of Pallavi you have seen. I have seen the. मैं तो ऐसे बचपन से देख रहा हूँ, मुझे मैम का सिर्फ यही आता है कि मैम के यहाँ पे that's a beauty. वो मिले था कि हाँ मैं उनके साथ मुझे एक बार काम तो करना है. उसमें जी पे मैम का टीवी सीरियल आता था, तब मैम के ऐसे इतने बार Childhood crush. एक फिल्म भी दादा. कंटिन्यू करना चाहूँगा क्या चाइल्डहुड लव. दोनों तरह से. ठीक. कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों दिग्गज के साथ काम करने? क्या सीखने को मिला और क्या ये चीज़ कभी हावी हुई या बहुत कंफर्ट जोन रहा कि पल्लवी जोशी, रितु राज साहब के साथ और आप अपनी उम्र और दो दिग्गज कलाकार? हम बाहर जाए इसके लिए. ये ऑनेस्टली मुझे काफी कुछ सीखने मिला. ऑफ कोर्स एक चीज सबसे ज्यादा जो मैंने चीज सीखी वो पेशेंस सीखी है दोनों एक्टर्स से, सरोमैन से. लाइक जैसे मैंने प्रीवियस फिल्म भी करी है मैंने नसीर सर के साथ, उनसे भी सेम चीज मैंने सीखी और बाकी भी अपने जो कास्ट है उनके साथ भी. तो मुझे एक बार भी झिझक नहीं हुई कि हाँ सीनियर एक्टर्स हैं और मुझे थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा ऐसा नहीं लगेगा. इफ आई एम सेइंग कि मैम दिस इज द शॉट, वी हैव टू स्टैंड हियर फॉर द 5 सेकंड्स और 10 सेकंड्स, मतलब मुझे ऐसा नहीं हुआ कि अच्छा ओके मैं पल्लवी जोशी हूँ या रितु राज. एकदम सॉर्टेड था. 2 दिन का शूट हमारा एकदम स्मूथली गया. इवन सुजाता मैम, रितेश और बाकी सुनीता मैम एंड ग्रीश, each and everyone, Monica and Ruchika and Akash. तो सबके साथ बहुत इजीली था क्योंकि मुझे क्लियर था मुझे क्या करना है. तो मैंने फिल्म में वही लिखा है जो मैंने स्क्रिप्ट में लिखा या मेरे राइटर्स ने स्क्रिप्ट में मुझे लिखे थे. तो इट वाज ऑल्सो कुछ भी ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ. जबकि शायद मेरे से कुछ प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं बहुत जल्दी कर रहा था. हमारे पास टाइम नहीं. लास्ट क्लाइमेक्स वाला सीन, छत वाला जो सीन है, तो काफ़ी चीज़ें थी. बट ऑल ओवर जब फिल्म आप देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया शॉट से और एक्टर से या ईपी से. मतलब ईपी थैंक यू हसन खान, उन्होंने ये पूरा करके दिया हमको. तो सबका अपना वो था, मतलब ये अकेले की मेरी नहीं, सबके फिल्म तो सब कंफर्ट थे तो मैं भी कंफर्ट था. So did you know कि what was the length of the film, like आधा घंटा, it could have been 25 minutes or 30 minutes? It was already decided. Like mine मेरा जो मेन था वो था 25 to 30. एंड जब स्क्रिप्ट मेरे पास जो फर्स्ट ड्राफ्ट आया था स्टोरी कॉन्सेप्ट वो भी अराउंड 30-35.
तो हम लोग डिसाइडेड थे कि अच्छा यहाँ से यही करना है, मैं ऐसे करना ऐसे करना। What is your overall view on this? Because यहाँ तो हमने एक थोड़ा सा happy way में होता है कि उनकी the husband is quite understanding, you know. So there are often instances where यहाँ पर मतलब people don't understand and the family breaks up. Could be, there might be so many cases like that. What's your view on that? See, understanding from the children and maturity from your husband is very important. I don't know if I should be saying this publicly, but I have seen a couple of marriages breaking where the wife has been older than the husband. And probably the husband was not matured enough to understand what his wife was going through because he was, not as old, not as experienced. But having said so, I'm not generalizing that. You have extremely sensitive men also. Your marriage can go through a little bit of a strain if there is a lack of understanding. But I wouldn't go as far as to say that a marriage would break because ये जो बहुत बार ऐसा होता है शादियों में कि कुछ एक phases होते हैं आपके बारे में you and your husband don't get along. और I'm sure everyone who's married here will agree with me कि झगड़े तो होते ही हैं because you're brought up in two different houses, two different upbringings. So कहीं ना कहीं तो बर्तन तो टकराएंगे ही और वो टकराने भी चाहिए क्योंकि नहीं तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी. आप हर चीज़ में सहमति एक दूसरे के साथ कैसे आप कर सकते हैं. तो ये छोटा फेज होता है मतलब it probably may last up to 3 years but for some women it ends in about a year or so, and with medication you don't even go through this entire thing. So we have very good medication available now so which takes care of your psychological health and you don't get into your erratic behavior also. So I wouldn't go as far as to this length of saying that a marriage would break because of something like menopause because this is not a new phenomenon. This has been happening since men and women have come into existence. So it's just a part of life. Or the reason we are making this film is not to suddenly make people sit up and take notice that oh there is a new epidemic in town called menopause. It's not that. It's been going on for centuries. हमारी दादियों ने, नानियों ने, परनानियों ने, परदादियों ने सबने यही चीज़ झेली है. आगे आज की जनरेशन, आज की मिडिल एज औरतें झेल रही है, आगे चल के हमारे बच्चों को भी ये झेलना है. तो ये कोई नई चीज़ नहीं है बट थोड़ी सी अवेयरनेस इसको लेकर थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग इज ऑल यू नीड. Yes. Why not? I would like to just add one thing. You're putting pressure on them by asking a question like this. The last film they did was with Nasir and Navni, and this film had me and Ritu. They're young people, this is an upcoming talent. Let them work with everybody who's there. We would love to work with them again, but they have to gain experience, work with different actors. And if you come back to us, of course, we love it. I agree with what Pallavi just said. I would also love to work with Mansi as shown again. और अभी मैं क्या बोलूँ मतलब डबल प्रेशर डालने वाला है. डबल प्रेशर तो नहीं डाल रहा हूँ लेकिन मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मेरा पासपोर्ट, आधार कार्ड और आई कार्ड इनके पास है. मेरा जो इस फिल्म का एक्सपीरियंस था ऑल ओवर, मानसी मैम पोस्ट में हमेशा मेरे से पूछती थी कैसा लग रहा है. मैं बोलता था कैसा लग रहा है पता नहीं. फिल्म पूरी बन के बाहर आई तो मैंने बोला द वॉलेट से काफी अच्छी. तो द वॉलेट विच इज लाइक माय ड्रीम फिल्म, इट्स माय फर्स्ट शॉर्ट फिल्म. जब इस फिल्म का पोस्ट कलर डीआई शशांक सर और नमरीश संकल्प सब ने जो साथ दिया था, उसके बाद जब ये रिलीज पोस्ट जब आया तो मैंने एक ही चीज़ बोली थी कि वॉलेट से काफ़ी बहुत अच्छी है. और वॉलेट में नसीब सर तो मेरे लिए दिस फिल्म इज बॉलीवुड से Thank you so much guys. And hope you guys enjoyed the film.
खोलो अरे हाथ तुम्हारा राकेश भाई हाँ सोलो ले रहे हो नहीं ग्रुप ले रहे ओपन ओपन और विकेट ले ले अंग्रेजी में बोलता ओपन ओपन क्या हुआ जोल भाई मैं अपने फोटो लेना फोटो हां अरे फोटो ले लेना मैं ये कहां से लूंगा मैं फोटो भेज दे दूंगा क्या हो रहा है तू कौन भाई है तो वहां भी तुम थोड़ा रुक जाना वीडियो में वीडियो खाली अंदर आ जाओ राजेश भाई तुम्हारा कैमरा पीछे करवा रहा है अभी इन लोग इसको भी पोडियम ला के खड़ा कर रहा है पोडियम है पोडियम घर से ला लुक हियर या सर इधर लुक सामने ऑल ऑफ यू डायरेक्टर भाई दूर गए सामने सामने लुक हियर लुक सेंटर सर सामने सब पल्लवी जी अरे वो रिफ्लेक्शन आ रहा है थैंक यू मैडम गाइस या मैडम सर मैम इनटू वायलेंस इधर एम्बियंस है इसको सुनते हैं अरे वही तो हैदर भाई तुम रुको ना यार कितना फोटो मारे यार तुम सही डन थैंक यू चाहूंगा ये जो टॉपिक है वो कितना स्पेशल है स्पेशली फिल्म के माध्यम से लेके जाना इम्पोर्टेंट था और कैसा एक्सपीरियंस रहा साइलेंस प्लीज यस सबसे पहले एक्सपीरियंस की बात करूंगी लुक सेंटर रखिए इट वाज वेरी नाइस एंड वंडरफुल वर्किंग विद सौमित्रा एंड मानसी मुझे बहुत अच्छा लगता है यंग लोगों के साथ काम करना क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है कुछ नई एनर्जीज आप में भी थोड़ी सी आ जाती है इनकी एक्साइटमेंट और एनर्जी लेवल देख के और जहाँ तक सिनेमा का ताल्लुक़ है किसी भी ऑडियो विजुअल मीडियम का ताल्लुक़ है फिर चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो या सिनेमा हो या टेलीविज़न हो along with entertainment it also gives you certain insight into life itself और अगर ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए एंटरटेनमेंट के थ्रू इस अगर माध्यम का उपयोग किया जाए तो नथिंग लाइक इट सो एज परफॉर्मर्स एज एक्टर्स आई थिंक हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ उनको कुछ ऐसी चीज़ दें कि जो वो ज़िंदगी भर अपने साथ रखें देयर हैज़ टू बी सम टेक अवे फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट ही अपने आप में एक इतना रेलेवेंट सब्जेक्ट है और ख़ासकर हमारे सब कॉन्टिनेंट के लिए पूरे सिर्फ इंडिया के लिए नहीं कहूँगी हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है आज ये अवेयरनेस क्रिएट करना आई थिंक वुमेन हैव लॉन्ग सफ़र्ड एंड आई थिंक दैट शुड एंड समवेयर These are not the things जो हमारे हाथ में है दिस इज़ समथिंग दैट नेचर डज टू अस सो इसके बारे में अगर ओपन डायलॉग हो इसके बारे में अगर चर्चा हो तो आई थिंक एवरी वुमन विल गेट कॉन्फिडेंस दैट आई एम नॉट अलोन इन दिस एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट्स व्हाई दिस फिल्म इज़ वेरी स्पेशल मैम ये कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबने ये ऐसा सब्जेक्ट उठाया बहुत रेयरली ऐसे सब्जेक्ट्स उठाए जाते हैं थैंक यू मेरा सवाल ये था कि मेनोपॉज तो सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ही लेकिन मैंने नोटिस किया कि कम्युनिकेशन जो इंसान सफ़र कर रहा है उसे कम्युनिकेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है क्या ये भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था आपकी स्क्रिप्ट में yes very important three important things which we need to focus communication acceptance and awareness the communication between husband and wife acceptance of a woman and the awareness for the youth for everyone awareness so the three stage of the film thank you आपको पहुंच गया मैसेज एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी जो फिलहाल पॉलिटिकल सिचुएशन हो रही है स्वरा भास्कर और सिद्धार्थ नारायण ने ये सवाल उठाया था कि उनका जो हार्ड एंड मनी है जो टैक्स पेयर के आजिम जो टैक्स आता है उनको वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल के ले जाएगा कि आपको भी लगता है कि आपको अपने पैसे ऐसे चीज़ के फंडिंग में डालने चाहिए कि आप इस चीज़ के अगेंस्ट हैं अब मानसी को पूछ रही मुझसे पूछ रही नहीं आपसे पूछ रही आपसे पूछ रहे हैं मेरे पास भी पैसे नहीं है मैं सच्ची बताऊं आप क्या पूछ रही है मुझे पता ही नहीं है मैं 1 महीने से यूएस में थी आई हैव जस्ट कम बैक सो आई हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग पॉलिटिकली और सोशली राइट नाउ मैं 1 महीने से डीआई रूम में ये भी नहीं थे और मैं भी लंदन में था इसलिए मानसी विल आंसर द क्वेश्चन नहीं मैं भी तो इसके साथ ही बिजी थी पोस्ट में रितु सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल फिल्म का और
सर ये जो बातें हैं वो सबके सामने, जैसे मैंने मैम से पूछा था कि कितना इम्पोर्टेंट है सबके सामने रखना, स्पेशली सिनेमा एक बड़ा माध्यम है जिससे लोगों तक पहुंचती है बातें, कितना इम्पोर्टेंट है इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना? बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेजेस एज पल्लवी जी सेड ऑफ दिस मीडियम. यू नो, आफ्टर ऑल द मीडियम इटसेल्फ इज कम्युनिकेशन, जैसे कि सौमित्र ने कहा. So this gives us an opportunity to communicate a thought or a certain subject to the larger audience, India, abroad. I feel that's one of the most beautiful things about our craft. And I personally, as an actor, have been very lucky because अभी 2 साल पहले मैंने टीवी छोड़ दिया था, लेकिन अभी recently ऐसा कुछ हो रहा है यूनिवर्स से कि I am getting roles in subjects which are giving messages. एक ये रिश्ता क्या कहलाता है में आई डिड अ रोल ऑफ अ वेरी बैड मैन विद सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन. देन देयर वाज दिस फिल्म व्हिच जस्ट वन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स. आई वन एन अवार्ड, लव हिस्ट्री, व्हिच वाज ऑन रेसिज्म. बट कास्ट को हटाओ यार, हटाओ इस कास्ट सिस्टम को. सिमिलरली सौमित्र एंड मानसी's film, it's about such an important topic. So these are all awareness things. Like I have been on social networks saying wake up India, wake up India. So menopause actually is something which, like Pallavi ji also said, it's been there for years यार. ऐसा तो है नहीं कि आज शुरू हुआ है. तो why are you not accepting it? Why are you not understanding it? And this is pure awareness creation and told in a story. You know, it's not standing there. देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि menopause ये होता है. नहीं, वो नहीं है. कहानी में उसमें घुल मिल के वो आया है और आपको रिलेशनशिप दिख रहा है ना. ये जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है ये कितना रिलेटेबल है. I myself am a married man, I have 2 children. When I was shooting with Pallavi ji, I could just relate to all the scenes because this boy had scripted it so well. If you notice the film, इसमें बनावटी भाषा है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल भाषा है जैसे हम लोग बात कर रहे हैं. ये एक मैं सवाल सौमित्र से पूछना चाहूँगी कि ये जो मियाँ बीवी के बीच का ये जो कई सालों के बाद जो तो तू मैं और नी ये जो सारा होता है, हाउ डू यू नो अबाउट दिस एट सच अ यंग एज? अरे वो बोर्डिंग पास यार, वो क्या नाम है उस लड़की का, जो बोर्डिंग पास वो इसकी जेब से तो निकला था. तो बेसिकली जो फिल्म में एक डायलॉग है कि इस लिस्ट पे कबाब रख के खा लेना. हाँ, बहुत प्यारा है. तो मेरी मम्मी हमेशा सब्जियां नमक ये सबका लिस्ट भेज देती थी पापा को. अच्छा. शी स्टिल डू. तो माय फादर से आ गया प्रेम पत्र. तो वो पार्ट मैं इसमें थोड़ा डालना चाहता हूँ सो दैट वी कैन रिलेट कि हाँ बहुत बेसिक चीज़ें वो थी. बैंकॉक वाला सीन अभी नहीं हुआ मेरे घर में. वो फिक्शन था. ओके, मानसी आपसे जानना चाहूँगा इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना कितना चैलेंजिंग था और लोगों के सामने लेके आना कितना बड़ा टास्क था आपके लिए, अगर थोड़ा कुछ इस बारे में बताया. सर और मैम है बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था, बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था. और सौमित्र सॉरी वी कॉल हिम सोम. एंड अभी जो है जो मेरा जो मेन फोकस है वो अवेयरनेस को लेकर के कि आई वांट लाइक यू नो घर का बच्चा जाने की यार मेनोपॉज क्या होता है. नाउ यू लाइक यू नो अभी पता है कि पीरियड्स क्या है, जस्ट सेम थिंग कि घर पे पता चले कि माई मदर इज गोइंग थ्रू मेनोपॉज और समथिंग लाइक. इवन आई हैव आस्क्ड माय मॉम आर यू इन अ फेज ऑफ मेनोपॉज. शी सेड नो, अभी है टाइम. मेरा नेक्स्ट सवाल वही होने वाला है कि आपको क्या इसके बारे में पता था और जब आप इस फिल्म मतलब करने वाले थे तो क्या रिसर्च करनी पड़ी इसको लेके, थोड़ा सा उस बारे में बताइए. क्योंकि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सर और मैम ने कहा कि बहुत सारी बातें ऐसी कही गई है जो रियल लाइफ में होती है. रिसर्च के वक्त आधी 60% रिसर्च मुझे मैम से मिल गई थी, मानसी मैम से. ऑनेस्टली मुझे नॉलेज नहीं थी क्योंकि हम लोग पीरियड्स की इतनी बातें कर चुके थे कि ये चीज़ पीछे ही जा रही है. मेनोपॉज के बारे में जब स्क्रिप्ट आई या कंटेंट आया तो आई हैव लाइक गूगल जिंदाबाद. एंड ऑल्सो आई हैव आस्क्ड लाइक माय मॉम, फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स मॉम जो उस एज पे हैं 50+ 60+, काफ़ी चीज़ें. तो मुझे ना इट्स नॉट लाइक कि डिस्टर्बिंग था, बट हाँ ऐसा था कि जो फीमेल्स हैं वेदर इट्स लाइक अ गर्ल, अ वुमेन, ओल्ड लेडी, बहुत मुश्किल है. मतलब मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा, वो जो इनके बड़े बाल जो गर्मियों में ये लोग संभालते हैं मेरे बस की नहीं. ऑनेस्टली मेरे बस की नहीं, क्योंकि मैं थोड़े से बाल भी मैं काट लेता हूँ. तो ये तो काफ़ी बड़ी चीज़ है. पर खुदा ने बनाया ही औरत को ताकतवर यार. तो इसलिए मतलब उस पर रिसर्च तो मैंने काफ़ी करी. ऑफ कोर्स कुछ लिंक्स मैम ने काफ़ी भेजे क्योंकि मैम ने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी थी. तो मेरे लिए 60% बहुत चीज़ ईजी हुई.
अभी my question to you is like at such a young age, इस तरह की story के साथ आगे बढ़ना, to direct and to make it feel like as if like it is like happening with everyone, as ma'am sir said, it is more relatable. It is it, मतलब ऐसा लगता है कि कई के डायरेक्टर्स कई सालों के बावजूद इतनी अच्छी स्टोरी नहीं बना पाते, इतना रिलेटेबल नहीं बना पाते. तो एट सच एन यंग एज आपने इस तरह की चीजें कैसे, एक सेकंड भी मतलब फिल्म से हटता नहीं मन, मतलब ऐसा लगता है मैम को देखते हैं, सर को देखते हैं, पूरी स्टोरी एकदम पानी के फ्लो की तरह बहती है. सो हाउ Thank you. or difficult for you to make such relatable stuff in such a short span of time? I have discussed like with my seniors directors. तो उनसे मुझे सिर्फ एक ही चीज़ आती थी कि नहीं, सोशल ड्रामा पे ज़्यादा हाथ नहीं लगा. बट आई थिंक कि अगर जब तक मैं हर जॉनर ट्राई नहीं करूँगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं किस में अच्छा हूँ. एंड बहुत सारी चीज़ें जो आई एम फ्रॉम गोंडा, इट्स फ्रॉम स्मॉल टाउन इन यूपी. सो आई हैव सीन मैनी थिंग्स, जॉइंट फैमिली में रह के भी देखा है, गांव में भी देखा है, अपने माँ बाप को भी देखा है. तो इट्स लाइक ठीक है, जो स्क्रिप्ट में है वो मैंने फिल्म में दिखाई है, मेरा काम आसान हो गया. अभी दो अलग जनरेशन दिखाई दे रही है, लाइक एक यंग डायनामिक है, एक आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड है. तो मैं पूछना चाहती हूँ, कभी आपके थॉट्स वेरी किए, कभी काम करते वक्त आपको लगा हो कि नहीं ये ज़्यादा फास्ट पेस है, हमें थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ये ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमें थोड़ा कुछ पर्सनल किस्से? ऑनेस्टली एक बात बताती हूँ, आई would like to say कि I'm speaking for both of us, but if Rituraj wants to hide his age, that's his concern. But I think जोरदार थप्पड़. But we started working in the good old 80s, so it's safe to say that we are from old school. Yes. और उसकी वजह से जो हमारा पूरा मेंटल मेकअप जो है कि किस तरह से हम किसी भी सेट को अप्रोच करते हैं, वहाँ पे हम समझते हैं that the director is the captain of the ship and we have to take orders from the director. Absolutely. I personally believe, and I think I'll keep this belief until the day I die, at least in this lifetime, that actors are subordinates to the director and we have to submit ourselves to his vision. Absolutely. So when you've already realized that you're going to have to take your instructions from someone, तो वहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता. और जैसे मैंने पहले भी बोला है कि आई लाइक टू वर्क विथ यंगर पीपल बिकॉज दे कम विद डिफरेंट थॉट, दे कम विद कुछ डिसरप्टिव आइडियाज़ होती हैं. एंड आई मस्ट से अबाउट सौमित्र, ही वॉज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट ऑन द सेट्स. मतलब कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो दिस इज़ अ सेकेंड शॉर्ट फिल्म और या ही इज़ न्यू टू द सेट्स. So he was absolutely confident, in control of the situation, and it just made everything so much easy for us. So I don't think there was ever any clash as such. We just sailed smoothly throughout the shoot. Yeah, I'd like to just add something to that. I agree with what Pallavi ji said. Soumitra made it very easy for us. For us, he knew his script. He knew what shots he wants to take. He knew the whole working dynamics of the whole film shoot. He was crystal clear. So it makes the actor's job so much easier. Yeah, that's true. There's no confusion, there's no fog. You're clear. The other great thing was that he and Mansi both put us in, I'm speaking for both of us, since you just did, put us in such a comfort zone, They were so nice to us. They were so they made us feel so comfortable that we could just, sort of get into our characters and just concentrate on that. There wasn't this, there was no negative energy. बेसिकली सब एनर्जी का खेल है यार, वो ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाए. सही बात है. हमें था ना ओल्ड स्कूल इट इज. आई बिलीव इन ओल्ड स्कूल. यस. Thank you very much all of you for coming and seeing the film with us. Thank you. God bless you. थोड़ा सा बताइए आप लोगों के लिए कितनी स्पेशल है और किरदार के बारे में थोड़ा बताया आप. जब मैंने शूट स्टार्ट किया था और ये टॉपिक आया था तो उस टाइम पे मुझे ये लगा था कि मतलब क्योंकि मेरी मॉम भी उस जर्नी से गुजरी हैं और उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया कि मतलब उनकी जर्नी कैसी रही होगी, उन्हें क्या प्रॉब्लम्स हुई होंगी, उन्होंने खुद से कैसे टैकल की होंगी. तो उस पर्टिकुलर मोमेंट मुझे ऐसा लगा, फिर मैंने अपनी मॉम को फ़ोन करके पूछा था कि आपकी जर्नी कैसी रही थी. और अगर मैं मेरे कैरेक्टर की बात करूँ तो मतलब मज़ा आया मुझे करके. Well, it all started with a phone call, and I got a call and they just asked me that, sir, we would like to cast you for so-and-so subject. I said, what? Can you repeat the subject? So I said, well, it's a woman-oriented, what do I do?
So then I just realized that even I'm a part of the society and women are also a part of society and these are natural phenomenon. I said, ठीक है. I said, okay, मिलते हैं चाय कॉफ़ी पे. बस journey started from there and I saw the passion, I saw the script and moment I saw the script and read it and how they narrated the script to me, I fall in love with it. I said, here, I'm just signing it off. तो मुद्दे की बात करें तो मुद्दा तो जैसे आपने देखा सभी ने बोला कि एक अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है और रही बात मेरे कैसे जुड़ा इस फिल्म से तो मैं सौमित्र से सबसे पहले द वॉलेट जो उन्होंने बनाई थी तो उसमें उनका जो द वॉलेट का थीम सॉन्ग है वो मैंने लिखा कंपोज किया और गाया है मैं सिंगर सॉन्ग राइटर एज वेल फिर उसके बाद थैंक यू सो मच फिर उसके बाद सौमित्र ने अपने आप ही जब स्क्रिप्ट आई उन्होंने स्क्रिप्ट बताया और उन्होंने मेरे को अपने आप ही बोल दिया था कि भाई गार्डनर का कैरेक्टर है तो कैरेक्टर जब पढ़ा तो आपने जैसे देखा फिल्म में कि जैसे पल्लवी जी सब पे गाज गिर रही है तो थोड़ी सी गाज मेरे पे भी गिरी है मेरे पे डबल गाज गिरी है क्योंकि मेरी लुगाई भी मेरे ऊपर लगी पड़ी है तो काम भी करना है तो बहुत खूबसूरत किरदार था छोटा सा किरदार था लेकिन बहुत खूबसूरत था एंड अच्छा लगा कि चाहे लोगों को हंसी आ गई एक सीरियस टॉपिक में हल्की सी चेहरे पे मुस्कुराहट आई तो उसके लिए हल्का सा क्रेडिट लेना चाहूँगा थैंक यू सो मच मुझे भी सौमित्र बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे तो उन्होंने अप्रोच किया इसके लिए और अवेयरनेस थी सोशल अवेयरनेस थी इसको लेके ऐसे जैसे रुचिका ने बताया कि मॉम को फ़ोन किया उसके बाद कि ऐसा होता है कि ऐसा हुआ क्या तो उन्होंने उनके टाइम पे चीज़ें हुई होंगी बट उनको याद ही नहीं तो उस टाइम पे शायद चीज़ें याद भी नहीं रहती थी हम लोग को शायद थोड़ा ज़्यादा सीरियस लेते हैं या जो भी एक क्योंकि हम लोग उस चीज़ में हमको मतलब लाइक सिखाया ही ऐसे जाता है कि इतना मैटर ही नहीं करता आपको आगे चलना है और चाहे जो भी मतलब एक पेन के जैसे वो पेन बता रहे मतलब जो दिखाया गया है बेसिकली तो बताना ये ज़रूरी था कि भी एक्चुअली पता चलना चाहिए कि किस तरह की पेन के साथ एक औरत निकलती है जब ये सब चीज़ें होती हैं और कभी ना कभी शायद हम भी ये चीज़ फेस करेंगे लाइफ में तो कहीं ना कहीं एक नॉर्मली ये चीज़ मैंने देखी है कि इतना रिलेट करते नहीं है लोग होता है अरे ये तो होता ही है फीमेल्स की लाइफ में बट थोड़ा रिलेट करके थोड़ा एम्पैथेटिक होकर सोचना चाहिए और उस टाइम पे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है उन्हें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है It's always, it was a great script to work on and especially the team of Mansi and the director Soumitra Singh they are brilliant. I just enjoyed. Thank you guys. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.